Hello and welcome, dears. You are once again very welcome in our online study program. Today we are going to start our next lesson in the book Vistas, and the next lesson is the enemy, and it is written by Paul S. Buck. So, dears, in this lesson we will read at the time of World War. There is a conflict inside the mind of a Japanese doctor, Sadao. And what is the conflict? The conflict is that he see a American soldier, and the American soldier is wounded, and there is a conflict because there was a conflict between America and Japan. And America and Japan were that time America and Japan were the enemies. And when Sadao sees that wounded American soldier, then there was a conflict into his mind. Should he treat the American soldier as he is a doctor, or should he call the police to capture him? So in this lesson we will see that what decision does the Japanese doctor take place. So the enemy. It is the time of the World War. That time was the time of World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state. एक जो अमेरिकन प्रिजनर होता है वो पानी में बहते हुए, समुद्र में बहते हुए किनारे पर आता है. And is found at the doorstep of Japanese doctor. और वो बहते हुए एक जापानी डॉक्टर जो सदा हुआ है उसके दरवाजे तक पहुंचता है या उसके घर के किनारे तक पहुंचता है. Should he save him as a doctor? क्या डॉक्टर ने वह एक डॉक्टर होने के नाते उसे बताना चाहिए, जापानी डॉक्टर ने उसे बताना चाहिए, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, या उसे देशभक्ति दिखा करके आर्मी के हाथों से पकड़वाना चाहिए. तो यह एक कॉन्फ्लिक्ट है कि उसके सामने दो चीजें हैं. पहली चीज वो एक डॉक्टर है, दूसरा वो जापानी है. अब वो अपने पैसे को, अपने प्रोफेशन के प्रति वफादारी करता है या अपनी देशभक्ति दिखाता है. अगर वह अपने पैसे के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति वफादारी दिखाता है तो उसे उस अमेरिकन जो सोल्जर था उसे बचाना होगा, और अगर वो पैट्रियोटिज्म दिखाता है तो वह उसे पकड़वाएगा. अब हमें देखते हैं कि वो क्या करता है. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी जो एक जापानी डॉक्टर था, उसका जो घर था वह जापानीज कोस्टल एरिया में बना हुआ था, और उस जगह पर वह बच्चों में बहुत ज्यादा खेला करता था. The low square stone was set up rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. The low square stone house, उसका जो घर बना हुआ था वह जो चौकोर जो स्क्वायर के शेप में जो पत्थर है उनसे बना हुआ था. Set upon rocks, और रॉक्स से चट्टानों के ऊपर बना हुआ था. Well above a narrow beach, एक नैरो बीच जो किनारा, जो समुद्र का किनारा था, नैरो किनारा था, उसके ऊपर बना हुआ था. That was outlined with bent house, और उसके घर की चारों ओर झुके हुए पाइन्स के जो ट्रीज होते हैं, चीड़ के जो पेड़ों के जो ट्रीज होते हैं वह थे. Supporting himself on his bare feet, और वह as he had seen men do in the South Sea when they climbed for coconuts. Supporting himself on his bare feet, और वह अपने आप को क्या करता था, बिना नंगे पैरों से वह अपने आप को bare feet में सपोर्ट करता था. As he had seen men do in the South Sea, जैसा कि वो दूसरे लोगों को करते हुए दिखता था साउथ सी में. When they climbed for coconuts, जब वह पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते, कोकोनट तोड़ने के लिए. His father had taken him often to the island. उसके फादर उसे हमेशा अक्सर आइलैंड की ओर ले जाते थे, of those sea, उन समुद्रों के. And never had he failed to say to the little brave boy at his side, और वह अपने जो ब्रेव बॉय से, सदाओ से यह कहने से कभी नहीं चूकते थे कि those island yonder, they are the stepping stones of the future Japan. देखो, वह सदाओ, उसके फादर, सदाओ के फादर, डॉक्टर सदाओ के फादर सदाओ से कहते थे देखो यह जो आइलैंड है वह जापान के फ्यूचर को डिक्लेयर करेंगे.
Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. अब सदाव बहुत सीरियसली उनसे पूछता था Where shall we step from them? वह कैसे फ्यूचर को या हम किस ओर को जा रहे हैं या जापान किस ओर को जाएगा? His father had answered. उसके फादर ने आंसर दिया Who knows? कौन जाने? Who can limit our future? कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है? It depends on what we make it. यह निर्भर करेगा कि हमसे क्या बनाते हैं. सदाव had taken this into his mind. सदाव ने इस बात को अपने उस फादर की उस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखी, अपने माइंड में रखी. As he did everything his father said. जैसा कि उसके फादर जो भी कहते थे वो हमेशा उसे करता था. His father who never joked or played with him. उसके फादर जो कभी उसके साथ हंसी मजाक भी नहीं करते थे, उसके साथ खेलते भी नहीं थे. But who spent infinite pains upon him, who was on his only son. लेकिन उसके फादर ने उसके लिए बहुत ज्यादा पेन उठाए थे, बहुत ज्यादा कष्ट उठाए थे क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था. सदाव knew that his education was his father's chief concern. सदाव जानता था कि उसके फादर के लिए, सदाव के फादर के लिए सदाव की जो एजुकेशन था वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी. For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine. तो उसके फादर जो थे उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस कारण से he had been sent at 22 to America. तो 22 ईयर की एज में उसके फादर ने सदाव को अमेरिका भेज दिया. टू लर्न, पढ़ने के लिए, ऑल दैट ही कुड बी लर्न टू सर्जरी एंड मेडिसिन. जितने भी चीजें वो सीख सकता था अमेरिका में जाके सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, उन चीजों को सीखने के लिए सदाव के फादर ने सदाव को अमेरिका भेज दिया था. He had come back at 30. और 8 साल रहने के बाद वह 30 की एज पे वापस जापान आया. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. And before his father died, और पिता की मृत्यु से पहले, he had seen, पिता ने देख लिया था, Sadao become famous not only as a surgeon. केवल वह सदाव के फादर ने अपने मरने से पहले सदाव को न केवल एक सर्जन के रूप में फेमस देखा बल्कि बट एज ए साइंटिस्ट, और एक क्या देखा, एक साइंटिस्ट ही देख लेता. मींस सदाव, उनके फादर ने जो सपने अपने बेटे के लिए देखे हुए थे वो पूरे कर चुका था सदाव, बाय बीइंग अ डॉक्टर एंड एज वेल एज अ साइंटिस्ट. बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी व्हिच कुड रेंडर वॉन्स इंटायरली क्लीन. बिकॉज, क्योंकि वो साइंटिस्ट क्यों बना, क्योंकि he was perfecting a discovery, क्योंकि उसने एक ऐसी खोज कर ली थी which would render wounds entirely clean. जो कि जो घाव होते हैं बॉडी में, वॉन्ड होते हैं, उनको कैसे परफेक्टली सही किया जा सकता है, परफेक्टली साफ किया जा सकता है. He had not been sent abroad with the troops. और जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो ट्रूप्स थी, जो आर्मी थी, उसके साथ सदाव को वर्ल्ड वॉर में नहीं भेजा गया. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition of which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. Also he knew also, वह यह भी जानता था कि there was some slight danger, कि कुछ dangers भी हैं. That the old general need an operation for a condition. और old general तो जापानीज आर्मी का जो old general था उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और उससे कभी भी एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी. For which he was now being treated medically. और जिसके लिए उसका लगातार क्या चल रहा था, उस जनरल का मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के लिए सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान. और सदाव को जापान में रखा गया, उसे वर्ल्ड वॉर के समय आर्मी के साथ नहीं भेजा गया, क्योंकि कभी भी जनरल को, जो जापानीज आर्मी का जो जनरल था, उसे सदाव की कभी भी जरूरत पड़ सकती थी और उसका कभी भी ऑपरेशन किया जा सकता था. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अब जब सदाव जो प्रेजेंट में था, जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई थी, उस समय पर क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अब ओशन में क्लाउड्स बन रहे थे, ऊपर की ओर उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव. अब अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव. कोल्ड वेव जा रही थी समुद्र से और उसके साथ बहुत ज्यादा फॉग भी उड़ा था. सदाव वॉज मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ एन इंडियन आइलैंड नियर द शोर. और सदाव ने देखा कि जो मिस्ट है उसने क्या कर दिया था, चारों तरफ से आइलैंड के चारों तरफ फॉग फैल चुका था.
एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और धीरे धीरे वो जो सदावत चट्टान पे जो घर बना हुआ था, रॉक्स पे जो घर बना हुआ था, उसके नीचे तक वो फैल चुका था। रैपिंग अराउंड द पाइन्स, और पाइन्स के चारों ओर भी उससे घेर दिया था मिस्ट ने। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ समय बाद वह फॉग जो था वह सदाओं के घर को भी घेर लेगा। Then he would go into the room when Hannah his wife would be waiting for him. अब वो सोचता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए, अपने घर पे जाना होगा, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी हाना वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, वहां और उसके बच्चे उसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो घर से बाहर था, सी बीच पर वो खड़ा हुआ था। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसके घर का दरवाजा खुला। एंड सी लुक्ड आउट, और हना ने बाहर की ओर देखा। ए डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हिज किमोनो, और उसने डार्क ब्लू वूलन का जो हाउरी होता है, का कपड़ा होता है, उसने किमोनो के बाहर पहना हुआ था। She came to him affectionately, वो उसके सामने प्यार से उसके सामने पर आई, and put her arm through his, और अपना हाथ उसके हाथ में रखा। As he stood, जैसे वो खड़ा था, smiled and said nothing, वो उसको देख के मुस्कुराई और उसने उससे कुछ नहीं बोला। He had met Hannah in America, वह हना से अमेरिका में मिला। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन उसने उससे प्यार नहीं किया, वह तब तक उसने उससे प्यार का इजहार नहीं किया जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो गया कि वो लड़की क्या थी, जापानीज थी। His father would never have received her unless she had been pure in her race, और उसको ये भी पता था कि अगर वह जापानीज लड़की नहीं होती है ना, तो उसके फादर भी कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. He wondered often, वो अक्सर क्या हो जाता था, वंडर हो जाता था, उसे आश्चर्य होता था कि he would have married if he had not met Hannah, कि वह किससे शादी करता। अगर हना उसकी लाइफ में नहीं आती तो कभी कभी सोचता था कि अगर हना उसकी लाइफ में नहीं आती तो वह शादी किससे करता। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और वो कहता है कि मैंने उसे शायद बहुत मुश्किल या बहुत लकीली उसे हाना नाम की लड़की मिली जिससे उसने शादी की, बाय चांस लिटरली, एंड एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, और उसे वह जो हाना थी जब वो अमेरिका में पढ़ाई करता था तो वह एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर हाना और डॉक्टर सदाओ की पहली मुलाकात हुई। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंडली पीपल, और प्रोफेसर और जो उसकी वाइफ थी, जो अमेरिकन प्रोफेसर था जो उसकी वाइफ थी, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे। Anxious to do something for her new foreign students, वो अपने न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, उनके लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और उनकी बातों को सुनकर, जब उनके घर वो लोग पढ़ने जाते थे तो उनकी बातों को सुनकर स्टूडेंट बोर हो जाते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन वह लोग उस प्रोफेसर और उसकी बीवी की जो काइंडनेस थी उसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that time. तो सदाओ हाना से कहता है कि वो कितनी मुश्किल से, कितने अनमने ढंग से उस रात को, जिस रात को पहली बार हाना और सदाओ मिले थे, तो सदाओ उस रात को प्रोफेसर के घर पे जाना नहीं चाहता था, बहुत अनमने ढंग से वहां पर आया था। The rooms were so small, क्योंकि उसके घर के जो रूम्स थे बहुत छोटे थे। The food so bad, और उसके प्रोफेसर के घर का खाना तो बहुत बुरा था। The professor's wife so voluble, और जो प्रोफेसर की वाइफ थी बहुत ज्यादा बातें करती थी, बातों में थी। But he had gone and there he had found Hannah, लेकिन वो फिर भी वहां पर गया, न चाहते हुए भी वहां पर गया प्रोफेसर के घर पे, और उसे वहां पर हाना मिली। A new student, जो नई स्टूडेंट थी, and had felt he would love her if it were at all possible, and or had felt, और उसने उस समय महसूस किया he would love her, वो उससे प्यार करेगा। If it were at all possible, अगर संभव हुआ तो वह उसे प्यार करेगा। So dears, it was today's lecture in English. We will continue the story in the next lesson, next lecture. Thank you. Have a nice day.